Hello dear children, one more question, one patent question and it's very important question in vectors. Okay, if your concept is very much clear, you can try this question. It is easy provided your concept about resultant of vector is clear, about direction of vector is clear. The question is about finding the angle between two vectors A and B. The question is finding the angle between vectors are A and B. This condition is given. This condition A plus B is a resultant of A and B. This A minus B is also a resultant. Whose resultant? Now A minus B. We can write A plus of minus B. So this is also a resultant between vectors. Which vectors? Now A plus of minus B, the resultant between A vector and minus B vector is this. And magnitude means magnitude of the resultant, not direction, magnitude of the resultant. So this question can be solved in two methods. One is analytical method, another is graphical method. Analytical method, by applying resultant is equal to square of first vector square of second vector plus 2 into square of first and second into cos theta square root. That's formula. And graphical method by applying parallelogram law or triangle law. Okay, let us solve first by analytical method. Analytical method से फर्स्ट शुरू करते हैं. ऑलराइट, सॉल्यूशन बाय एनालिटिकल मेथड. एनालिटिकल मेथड क्या कहता है? रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ठीक. नाउ आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू रिजल्टेंट मीन्स रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर plus b square plus 2ab cos theta square root. Here vectors are a and b. Here vectors are a and b. I am talking about magnitude, that's why only a square means only magnitude a square. Magnitude of b square, not square. a square vector का square नहीं होता है, ये magnitude का square होता है. Alright, magnitude का square, वेक्टर्स का स्क्वायर नहीं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. सो ये मैग्नीट्यूड है, सब मैग्नीट्यूड है. ना आर मैग्नीट्यूड क्या है? ना ए बी का ए प्लस बी, आर इज ए प्लस बी, आर इज ए प्लस बी. ठीक, आर इज ए प्लस बी, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta square root. Now a minus b vector mod is equal to a square plus minus b vector mod square. A square means a vector mod square. I had already explained you here. Okay, plus 2a vector mod into minus b vector mod into cos theta. Now here theta is a big question. Theta, dear children, try to understand here, then afterwards we will come to here theta. Suppose this is a and this is b. This is a vector, this is b vector. The angle between them is theta. Alright, because this is the diverging point. A diverged, b diverged, so angle is theta. If angle between a and b is theta, here a minus b इस हिसाब से लिख सकते हैं. a प्लस ऑफ माइनस बी मतलब a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, इसका मतलब यही है. तो a माइनस बी के बीच में एंगल ढूंढना पड़ेगा. अगर b इस तरफ है, माइनस बी किस तरफ? अपोजिट इस तरफ है. इफ b, सपोज दिस इज o से b अगर उस तरफ है, o से b इस तरफ है, सो दिस इज माइनस बी. एंड व्हाट विल बी एंगल बिटवीन ए एंड बी? ये तो ए है, ये माइनस बी है, तो यही होगा उसका एंगल, ये होगा उसका एंगल, ये नहीं है. ये एंगल कितना? अगर ये थीटा है तो टोटल इज 180, सो 180 माइनस थीटा. ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा. So you should place here 180 minus theta.
रेड पेन से इसलिए यूज किया कि तुम्हें मालूम पड़ेगा ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी इज 180 माइनस थीटा, नॉट थीटा। ठीक, आप इस्तेमाल करो। नाउ इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, मैग्नीट्यूड का नेगेटिव मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव, सो माइनस बी स्क्वायर तो है ही, लेकिन अगर सिर्फ इतना ही होता इज इक्वल टू प्लस बी, माइनस नहीं होगा, यहाँ पर ही आ रहा है, तो प्लस 2 ए मैग्नीट्यूड इज ए माइनस बी मैग्नीट्यूड इज बी, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, ASTC, all trigonometry all, add sugar to coffee, one of the formula to remember this, ASTC rule, all positive, sine and cosine positive, tan cot positive, cos and secant positive. 180 minus theta means this quadrant, this is 180 minus theta means this quadrant, sine cosec positive but cos is negative, so cos 180 minus theta is minus cos theta, all right. Now a square plus b square plus minus 2ab cos theta, ये कितना ना a माइनस बी, a माइनस बी इतना, a प्लस बी उतना, तो ये दोनों इक्वल है, दिस विल बी इक्वल, इसका स्क्वायर रूट भी बैठेगा, स्क्वायर रूट इज मिसिंग, स्क्वायर रूट आई एम सॉरी, स्क्वायर रूट ऑल्सो देयर, सो ये जितना ये उतना, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 a square plus b square plus 2ab cos theta is equal to a square plus b square minus 2ab cos theta. स्क्वायर रूट दोनों साइड लो, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कट गया. If I let square root, if I take squaring on both sides, square root cancelled out, so इतना बचा. अब ये सब कट रहा है, ये कट जाता है, ये कट जाता है, ये प्लस 2ab cos थीटा माइनस 2ab, मतलब इस साइड ले आओ, उस साइड 0 बचा, सो 2ab cos थीटा माइनस 2ab आया, तो कितना होगा 4ab cos थीटा. इन लेफ्ट साइड 4ab cos थीटा, राइट साइड में क्या बचा है, कुछ नहीं, मतलब 0. तो cos थीटा क्या होगा ना, 0/4ab इज इक्वल टू 0. cos थीटा 0 होता है, तो cos थीटा कौन से एंगल में 0 होता है, cos 90 में 0, सो थीटा हाउ मच 90 डिग्री. ये हो गया उसका सोल्यूशन. तो हमें इसका आंसर क्या मिला 90 डिग्री. इसका आंसर है 90 डिग्री. एनालिटिकल वी फाउंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 इफ कंडीशन इज दिस. A plus b is this, a minus b is this. How is this? I have already explained. Then from 1 and 2, this is equal to this, cancelled out, we got theta is equal to 90. This is analytical method. Let us jump to graphical method. How graphically it can be solved, we'll see. ये हो गया एनालिटिकल मेथड. ये थीटा है, उसको रहने दो, एक लाइन खींच देता हूं. यहीं पर ग्राफिकल मेथड कर देंगे. ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है. ग्राफिकली सॉल्व करते हैं. देखो ग्राफिकली के लिए हम एक काम करते हैं, एक बड़ा सा पैरेललोग्राम लेते हैं. पैरेललोग्राम, ठीक. मानो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये ए बी सी डी. पैरेललोग्राम. ए वेक्टर इज दिस साइड, डायरेक्शन के लिए अलग इंक यूज करता हूँ. ए वेक्टर इज दिस साइड, बी वेक्टर इज दिस साइड. ये इक्वल है तो उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, बी इस तरफ तो बी भी उस तरफ होगा डायरेक्शन. दिस इज पैरेललोग्राम, ठीक. इफ ए बी इज बी, डी सी ऑल्सो बी. इफ ए डी इज बी, दिस ऑल्सो बी. ये भी ए, ये बी है तो ये भी बी, ठीक. अब देखो a प्लस बी क्या होगा. एज पर पैरेललोग्राम the resultant of two vectors, when the two vectors are taken at the adjacent sides of a parallelogram by magnitude and direction. ये है मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन. ये है मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन. बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इफ two vectors depict
the two adjacent sides of parallelogram, then the diagonal, then that diagonal which passes through the common point is the resultant. As per parallelogram law, this vector is the resultant. SC is the resultant of A and B. हम लिखते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर SC. तो SC हमें कितना मिला? A वेक्टर प्लस B वेक्टर. ऑलराइट, अब A वेक्टर माइनस B वेक्टर क्या देखते हैं? A वेक्टर माइनस B वेक्टर, A ये है, B ये है, B ये है, A ये है. A माइनस बी निकालना है, A माइनस बी, A तो ये है, माइनस बी निकालना है. ठीक, देखो डाइवर्जिंग पॉइंट से लेंगे. अगर B इस तरफ है, B ये इस तरफ आएगा. ठीक, A ये गया. अगर B इस तरफ आ रहा है तो एक कन्वर्ज एक डाइवर्ज. दोनों डाइवर्जिंग पॉइंट कहाँ हो रहा है देखेंगे. पहले चेक करेंगे A एंड B वेयर दे आर डाइवर्ज. A एंड माइनस बी, ए बी तो यहाँ पर डाइवर्ज हो रहा है इस पॉइंट से. अब A माइनस बी कहाँ डाइवर्ज हो रहे हैं? A दिस साइड, ये A B दिस साइड, B दिस साइड. सो इफ विल टेक माइनस बी हियर, सो बोथ विल बी डाइवर्ज्ड. देखो बेटा क्यों मैं ढूंढ रहा हूँ. अगर हम ये लेंगे, ये A इस तरफ माइनस बी लेंगे, तो ये दोनों वेक्टर लेंगे, A उस तरफ है, माइनस बी इस तरफ है, तो एक कन्वर्ज हो रहा है पॉइंट को, एक डाइवर्ज हो रहा है, तो ये नहीं होगा, एंगल नहीं निकल पाएंगे. हमें क्या लेंगे ना, अगर इफ दिस इज A, दिस इज A एंड A डायरेक्शन इज दिस साइड टुवर्ड्स C एंड B डायरेक्शन इज टुवर्ड्स B, इफ B डायरेक्शन इज टुवर्ड्स B, माइनस बी विल बी टुवर्ड्स A, तो ये होगा माइनस बी. ये हो गया माइनस बी. If plus B is towards in AB, if plus B is towards B, minus B will be towards A. और ये है डाइवर्जिंग पॉइंट माइनस बी का, इसका नहीं, प्लस बी का नहीं, माइनस बी का. ये है डाइवर्जिंग, क्योंकि माइनस बी इस साइड का है, ये माइनस बी है, ये A है. दिस इज द पॉइंट ऑफ डाइवर्जन. ये होगा उनका एंगल. ठीक, पैरेललोग्राम लोग क्या कहता है ना, इन दीज आर टू एडजेसेंट साइड्स आल्सो. ये दोनों साइड, इसको छोड़ो, ये तो गया उसका काम. ये दोनों एडजेसेंट साइड है, तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है इफ टू वेक्टर्स बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन depicts or represent as the two adjacent sides of a parallelogram, then that diagonal which passes through the common point will be the resultant. मतलब ये ही diagonal उनका resultant होगा. A and माइनस B इन दोनों का बीच का resultant क्या होगा ना, A होगा. A B ये होगा रिजल्टेंट. BD will be resultant. BD will be A plus of minus B. A माइनस बी का रिजल्टेंट BD होगा. A माइनस बी मतलब A प्लस ऑफ माइनस बी. रिजल्टेंट मतलब प्लस एडिशन. ठीक, तो ये होगा उसका रिजल्टेंट. मतलब हम इसको लिख सकते हैं A प्लस ऑफ माइनस बी, A प्लस ऑफ माइनस बी, A वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी, और क्या ना A माइनस बी, A माइनस बी. तो BD इज A माइनस बी एंड SC इज A प्लस बी. दोनों इक्वल. A प्लस बी, A माइनस बी का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, ये लिखा है, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है. तो मतलब SC का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू BD का मैग्नीट्यूड. अगर ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल. SC मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू BD मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन तो अलग है, SC का डायरेक्शन उस तरफ है, BD का डायरेक्शन उस तरफ है, तो डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है. मतलब ये जितना बड़ा है ये उतना बड़ा है. हाउ मच लेंथ BC इज, दैट मच लेंथ BD इज. लेकिन पैरेललोग्राम में होता है क्या, पैरेललोग्राम में क्या डायगोनल सेम होता है? सेम भी होता है, जरूर नहीं वो सेम ना हो. रंबस में नहीं होता है. रंबस में साइड्स विल बी इक्वल बट डायगोनल्स आर अनइक्वल. बट पैरेललोग्राम में क्या होता है, एक कंडीशन है जब व्हेन द डायगोनल्स विल बी इक्वल. कब ना, जब वो पैरेललोग्राम स्क्वायर है. बिकॉज ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम. ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट स्क्वायर्स बट ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम. व्हाई? इन स्क्वायर्स
opposites, what is the definition of parallelogram? Opposite sides are parallel and equal. Square also opposite sides are parallel and equal. Other features are there, every angle is 90 degree, diagonals are equal, but diagonals are equal and every angle is 90 degree, that is not the feature of parallelogram. Parallelogram का feature एक ही है, opposite sides are parallel and equal, बस इतना. So square का opposite side parallel equal भी है. तो मतलब if this is the condition, then ABCD is what? ABCD parallelogram is a square. ABCD parallelogram is a square. अगर ABCD पैरेललोग्राम एक स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये कंडीशन है, तो व्हाट विल बी ईच एंगल? तो ये एंगल कितना होगा 90, ये एंगल कितना होगा 90, ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 90. अगर ये 90 हुआ तो ये है B, ये है A. AB का बीच का एंगल कितना 90, ये है AB का एंगल कितना मिल गया 90, खत्म. ये हो गया ग्राफिकली. ग्राफिकल थोड़ा अड़ा तड़ा लगा होगा. 2-3 बार इस सॉल्यूशन को देखो, इस वीडियो को 2-3 बार देखो, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा. हाउ एंगल बिटवीन AB इज 90 डिग्री ग्राफिकली, यू विल अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप. जस्ट 2-3 टाइम्स रिपीट, कीप वॉचिंग, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड. हाईलाइट कर तो ईजी है, ग्राफिकली आना चाहिए भी. 2 मेथड मैंने एक्सप्लेन किया अब आपके सामने, सो देख लो, सीख लो. थैंक यू, बाय.